So last time we have seen this example, integration from 0 to log 2, integration from 0 to x, integration from 0 to x plus log y e raised to x plus y plus z. We have seen that how to solve this integration. Next is we will see about the examples. So before going to cylindrical coordinates and all, we will solve one or two example more. So consider this particular example. Okay. Integration over region V dx dy dz upon 1 plus x plus y plus z cube, where V is the volume bounded by the planes x is equal to 0, y is equal to 0, z is equal to 0, and x plus y plus z is equal to 1. So this is a very particular plane. So let us first find the coordinates of this particular. Okay. Let me denote the axis here. This is your x-axis, y-axis. This is your z-axis. Okay. So this is a three-dimensional plane which we are drawing. First equation is x is equal to 0. Remember, when we are in the two dimensions, say xy plane, जब हम लोग दो डायमेंशन में होते थे तो x is equal to 0 is the equation of y-axis, right? X is equal to 0 is equation of y-axis and y is equal to 0 is equation of x-axis. So when I say x is equal to 0 in three dimension, x is equal to 0 in three dimension क्या होता है कि you have to put x is equal to 0, so it is representing whole yz plane. So ये जो पूरा yz plane है, that is the equation represented by x is equal to 0. Similarly, y is equal to 0 क्या होगा? Y is equal to 0 is the equation of xz plane. So x and z axis जिस plane में है, वो plane का equation is represented by y is equal to 0. And what is the equation z is equal to 0? Z is equal to 0 is a equation of xy plane. तो अभी आपके पास क्या है, अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिख दूं, यहाँ पे x is equal to 1 है, यहाँ पे y is equal to 1 है और यहाँ पे z is equal to 1 है. तो ये जो पूरा रीजन है जो मैं yz में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पूरा रीजन किस प्लेन में होगा? x is equal to 0 में होगा. Similarly, if I drawing the region in xz plane, ये जो स्क्वायर होगा, जो मैं x पे 1 ले रहा हूँ और y पे 1 ले रहा हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ, ये जो स्क्वायर होगा, जो स्क्वायर फॉर्मुलेट होगा, वो कौन से प्लेन में रहेगा? It will be in the y is equal to 0 plane. And similarly, when I take x coordinate and y coordinate, 1 1 को मैच करके यहाँ पे जो रीजन बनाऊंगा नीचे वाला, ये सब जो रीजन है वो किस प्लेन में होगा? It is in the plane z is equal to 0. So ऐसे थ्री डायमेंशन में हम इमेजिन कर सकते हैं चीजों को. Now x plus y plus z is equal to 1. इसको अगर मुझे ड्रॉ करना है तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा? मुझे कोई भी तीन नॉन लीनियर पॉइंट लगेंगे. इस पॉइंट का इक्वेशन होगा, सिंस y पे 1 है, x पे 0 है एंड z पे भी 0 है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0 1 0. सिमिलरली ये जो पॉइंट है से z एक्सिस पे 1 है और बाकी दो एक्सिस 0 है, सो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0 0 1. z एक्सिस पे 1, बाकी दो पॉइंट्स 0. सिमिलरली ये पॉइंट का डायमेंशन होगा x पे 1, y 0 एंड z इज 0. तो ये जो तीन पॉइंट्स मुझे मिल रहे हैं 0 0 1, 0 1 0 and 1 0 0, they will satisfy this equation. Are they satisfying this equation of the plane? X plus y plus z is equal to 1. Try करो.
पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे प्लेन के इक्वेशन को। सो ये 3 पॉइंट से जाने वाला जो भी प्लेन बनेगा वो मेरा प्लेन कौन सा होगा? दैट इज माय प्लेन x plus y plus z is equal to 1. सो ये जो है ट्रायंगल, उसके नीचे जो भी रीजन रहेगा, तो यू कैन अज्यूम दैट कि आप अगर एक कमरे में हो तो कमरे का जो लेंथ होगा वो x एक्सिस होगा, ब्रेड होगा वो y एक्सिस होगा, एंड जो हाइट होगा वो z एक्सिस होगा। तो हर एक कोना पकड़ के आप उसमें अगर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर ऐसे ड्रॉ करोगे तो आपको ये 3 पॉइंट्स मिलेंगे। हाइट पे ये मिलेगा, लेंथ पे ये मिलेगा, ब्रेड पे ये मिलेगा। सो ये जो कोना होता है आपका, वो कोने का अगर मैं 3 पॉइंट्स ले रहा हूँ ऐसे, जहां पे मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे आपका कॉर्नर है रूम का, और ये हाइट z एक्सिस है, ये जो लेंथ है वो x एक्सिस है, ये जो है वो y एक्सिस है। सो आप अगर ये 3 पॉइंट्स 1-1 मीटर की दूरी पर है वो ऐड करोगे तो आपको ये जो ट्रायंगल मिलेगा, उसके नीचे जो ये मतलब ये पिरामिड टाइप का शेप बन जाएगा, और उसके नीचे जो भी वॉल्यूम रहेगा वो वॉल्यूम किसका है? दैट इज द वॉल्यूम ऑफ अंडर द प्लेन x plus y plus z is equal to 1, x is equal to 0, y is equal to 0, z is equal to 0. सो ये आपके जो वॉल्स है वो आपके प्लेन्स बन रहे हैं, एक्स जेड प्लेन बन रहा है, वाई जेड प्लेन बन रहा है, एंड एक्स वाई प्लेन बन रहा है। एंड आपका इसका जो अदर बाउंड्री है, इट इज दिस बाउंड्री इज x plus y plus z is equal to 1. तो अभी इसको जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो मेरा डायग्राम इतना अच्छा नहीं है, सो लेट अस यूज द गूगल। लेट मी सी इफ आई कैन गेट द इक्वेशन। प्लेन y z ओके, so this type of equation you can see that यहाँ पे आपको एरिया दिख रहा है ऐसे। Yes, sir. ये जो इक्वेशन है इनका, ये टाइप का रीजन आपका फॉर्म होगा x plus y plus z is equal to 1। यहाँ पे पॉइंट x एक्सिस पे 1 है, y एक्सिस पे 1 है, z एक्सिस पे 1 है। ये जो एरिया मिल रहा है प्लेन का एरिया है। लेट अस मूव फर्दर। सो इसका रीजन का लिमिट्स कैसे आएगा? सो लेट अस ड्रॉ द फर्स्ट थिंग। पहले तो हम लोग ये जो इक्वेशन है कोई पॉइंट लेंगे, यहाँ कोई भी एक पॉइंट और उसका z डायमेंशन में पिक करेंगे। ये जो z डायमेंशन ये इस प्लेन में रहेगा, एक पॉइंट इस प्लेन में रहेगा, एक पॉइंट xy प्लेन में रहेगा, ग्राउंड पकड़ लो इसका। सो ये इसका इक्वेशन क्या होगा? इसका इक्वेशन क्या होगा? दिस इज z इज इक्वल टू 0 होगा, और ऊपर वाले का इक्वेशन क्या होगा? z इज इक्वल टू, यहाँ पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। सो z इज इक्वल टू 1 माइनस x minus y. So integration from 0 to 1 minus x minus y. Okay. तो यहाँ पे हम लोग ये पूरा जो रीजन है वो कैसे सॉल्व करें? पहले कोई भी एक रैंडम पॉइंट उठा लिया, वो रैंडम पॉइंट को हमने ये प्लेन तक बढ़ा दिया। सो हम लोग को ये जो फाइंड करना है, ये वॉल्यूम जो फाइंड करना है, तो इट इज 0 टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट 1 minus x minus y. नेक्स्ट सेकेंड इंटीग्रेशन, जब हम इसको, ये जो नीचे का ट्रायंगल है एक्स वाई प्लेन पे, उस पे क्या रहेगा इक्वेशन? यहाँ पे पॉइंट y एक्सिस है, सो इट इज 0,1 सॉरी, और यहाँ पे जो x एक्सिस है उसका पॉइंट है 1,0। ठीक है, अभी इसका ये लाइन का इक्वेशन क्या रहेगा? x plus y is equal to 1। कोई भी अगर पॉइंट है, अगर सपोज आपका ऐसे पॉइंट है जो लाइन a,0 से जा रही है और 0,a से जा रही है, तो उसका इक्वेशन रहेगा x plus y is equal to a। ये सिंपल टेक्निक है, आप चाहे तो देख लो x is equal to 1 सेटिस्फाई कर रहा है क्या 1,0, एंड 0,1 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, तो ये हो जाएगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, वो जो y is equal to mx plus c वाला जो फॉर्मूला है उससे भी सॉल्व कर सकते हो, बट उतना डिफिकल्ट नहीं करेंगे।
हम लोग का इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे x एक्सिस में ये पॉइंट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, c, यहाँ पे से y इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो इट इज 1 माइनस, फाइनली एक्स एक्सिस पे लिमिट्स ऐड करेंगे 0 to 1, और ये जो भी एरिया है dx dy dz अपॉन अपना क्या था एरिया, लेट मी इरेज, अपॉन एरिया था 1 प्लस एक्स प्लस वाई मेरा प्लस जेड ब्रैकेट क्यूब. Now we have got this particular limit. So let us write this limit very carefully. यहाँ पे मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ so that it will become clear. 1 minus x minus y. So is it visible now? So how I got this limit? I got this limit from this diagram. Okay. ये diagram से मैंने ये limits निकाल दिया. अभी we will solve this particular limits. So अभी आप कर सकते हो. फर्स्ट क्या करोगे, विथ रिस्पेक्ट टू किससे इंटीग्रेट करोगे, विथ रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट करना है, इज 1 प्लस एक्स प्लस जेड रेज टू 3, सो इट इज ऑफ द फॉर्म 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, it is in the denominator, so it is minus 3. So what is the integration formula for x something raised to n? X is to n plus 1 upon n plus 1. Yes, anyone. It is of the form x raised to n. Z raised to n के फॉर्म में ये x and y इधर कांस्टेंट रहेंगे, सिर्फ dz से इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग. So dx dy बचेगा, एंड यहाँ पे लिमिट्स क्या होगा, लिमिट्स बाद में डालेंगे 0 to 1 minus x minus y. So it is 0 to 1 integration from 0 to 1 minus x से 1 प्लस एक्स प्लस वाई, ये कांस्टेंट है, इसको एज इट इज रखेंगे, प्लस जेड में लिमिट डालेंगे, ये ब्रैकेट रेज टू -2 अपॉन -2, लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1 minus x minus y dx dy. ओके, अभी नेक्स्ट सॉल्व करेंगे. इसको लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, क्या होगा, 0 to 1 integration from 0 to 1 minus x. Is my voice audible? Yes, sir. Is my voice audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, then let us continue. यहाँ पे क्या करेंगे, z में लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, 1 प्लस एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, तो यहाँ पे z की जगह पे क्या रखेंगे, 1 माइनस एक्स माइनस वाई रेज टू -1 अपॉन -2 है तो एज इट इज रहेगा, और जब 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, रेज टू -2 सॉरी, 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे 1 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस वाई -2 -2, और यहाँ पे क्या रहेगा, लिमिट्स तो सब्स्टिट्यूट हो गए, तो dx dy. So let us scroll down.
ठीक है, अभी लिमिट सब्स्टिट्यूट करो। यहाँ पे मैं इधर भी स्क्रॉल करता हूँ। Let me take some different pen, which is equal to 0 to 1. अभी यहाँ पे x and y will get cancelled. So यहाँ पे 1 plus 1 2, 2 raised to minus 2. So 1 upon minus 2 ऑलरेडी था, अपॉन 2 स्क्वायर नीचे चला जाएगा, माइनस 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 यहाँ पे प्लस लिख सकता हूँ मैं, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x प्लस वाई। सो आपको बहुत ही पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिपल इंटीग्रेशन फॉर्मूले मतलब आपको डिवाइड मतलब इंटीग्रेट करना ही है 3 टाइम। 0 to 1 के साथ अभी आपका क्या है, 0 to 1 माइनस एक्स, ओके, dx dy। अभी लिमिट्स किसके टर्म में है, लिमिट्स इन द टर्म्स ऑफ x, सो यू विल इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y। सो ये जो भी आएगा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 0 to 1। अभी ये फर्स्ट टर्म लेता हूं मैं, क्योंकि उसको प्लस साइन है, 1 प्लस x प्लस वाई रेज टू माइनस 2 अपॉन 2 माइनस, ये क्या है इसका वैल्यू 1/8। इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 to 1 माइनस एक्स, पहले dy एंड देन dx। Okay, so let us come back to our topic. So इसको इंटीग्रेट करते हैं, चलो फिर से 0 to 1। अगेन यहाँ पे पावर के y के रिस्पेक्ट टू -2 पावर है, तो इसका क्या होगा पावर, 1 प्लस एक्स प्लस वाई रेज टू -2 प्लस 1 -1 अपॉन 2 इंटू -1। ये इंटीग्रेट कर लिया, माइनस 1/8 dy से इंटीग्रेट करना है इंटू वाई। इसका लिमिट्स क्या रहेगा, 0 to 1 माइनस एक्स dx। लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, 1 माइनस एक्स वाई में डालोगे तो क्या होगा, 0 to 1, फिर से 1 माइनस एक्स डालोगे तो क्या होगा, 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, वाई की वैल्यू डाली, रेज टू -1 अपॉन -2 माइनस 1/8 इंटू वाई की वैल्यू 1 माइनस एक्स, ये हुआ फर्स्ट ब्रैकेट, माइनस सेकेंड ब्रैकेट में क्या होगा, व्हेन यू पुट 0, सो फर्स्ट टर्म में सिर्फ 0 पुट होगा, 1 प्लस एक्स रेज टू -1 अपॉन 2 इंटू -1 माइनस 1/8 इंटू वाई, वाई की जगह पे 0 डाला तो 0 ही मिलेगा, and this integration with respect to x. So let us simplify. Again this x and x will get cancel out. 1 plus 1 2, 2 raised to -1 मतलब 1/2 होगा. So it is integration from 0 to 1, 1 upon -2 into ये 2 raised to -1 is 2 as it is रखा, माइनस इसका वैल्यू क्या रहेगा, 1/8 minus minus will become plus 1/8x. So you have to be patient, you don't have to lose your patience on this, but यहाँ पे minus will become plus 1 plus x raised to -1 upon 2, and this is with respect to dx. So यहाँ पे क्या होगा, 1/4 माइनस 1/4 होगा, -1/4 माइनस 1/8 कितना होता है, 0 to 1। लेट अस सिंप्लीफाई ऑल दिस थिंग। 1/4 माइनस 1/8 होता है -3/8 प्लस 1/8x, ओके, एंड इसका वैल्यू क्या रहेगा, प्लस 1/2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स dx। अब ये सिंपल हो गया, इसको सॉल्व करना है अपने को।
So let us scroll down. क्यों नहीं हुआ scroll down? So let us solve. So इसीलिए मैं बोलता हूँ अगर ट्रिपल डायमेंशन का इंटीग्रेशन है 3/8 इंटू एक्स इंटीग्रेशन हो गया 1/8 सॉरी प्लस साइन देते हैं प्लस 1/8 व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स x² by 2 plus 1/2 what is integration of 1/upon 1 plus x it is log x log of 1 plus x अभी लिमिट्स क्या रहेंगे 0 से लेके 1 पुट लिमिट्स पहले 1 डालेंगे तो 3/8 into log of this is log of 0 is 3/8 into 1 plus 1/8 into 1/2 is 1/16 plus 1/2 into log of 1 plus 1 is log 2 माइनस अभी फर्स्ट लिमिट क्या होगा 0 होगा सेकेंड लिमिट क्या होगा +0 होगा थर्ड लिमिट क्या होगा log 1 होगा log 1 भी 0 होता है सो इट इज 0 ऑल सो इसको सिंप्लीफाई करो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे सिर्फ 1/16 माइनस 3/8 मतलब क्या है 1/6 माइनस 6/16 माइनस 5/16 प्लस half log of 2. So this is your final answer. So understood the process. Okay, process is simple है सिर्फ आपको डायग्राम बनाने आना चाहिए ये डायग्राम स्पेसिफिकली मैं बोलता हूँ याद रखो आपको जो भी ट्रिपल इंटीग्रेशन आने वाला है वो यही प्लेन पे आने वाले x is equal to 0 y is equal to 0 z is equal to 0 and x plus y plus z is equal to 1 ये प्लेन रहेगा या फिर कोई और प्लेन रहेगा x plus y plus z is equal to a तो उसका कोऑर्डिनेट्स क्या रहेगा a 0 0 0 a 0 and 0 0 a सो अगर आपका प्लेन जो होगा वो अगर ऐसा है x plus y plus z इक्वल टू a इस टाइप का प्लेन है तो ये 1 के जगह पे सब जगह पे a कर दो a and you will done nothing much more interest और फिर लिमिट्स क्या होंगे a minus x minus y a minus x and 0 to 1 सो ऐसे लिमिट्स होंगे ओके सो लेट अस सॉल्व वन मोर प्रॉब्लम ऑन दिस ट्रिपल इंटीग्रेशन यहाँ पे ऑलरेडी लिमिट दिया हुआ है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x minus z to x plus z integration from 0 to z integration from -1 to 1 x plus y plus z dx dy dz अभी आप मुझे बोलोगे मैं कुछ नहीं करने वाला You have to tell me what I should do. First integration किससे करना है? Differentiate with y. ये वाला जो इंटीग्रेशन है x minus z to x plus z ये किसके रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करना है अपने को? Y. x के रिस्पेक्ट टू y के करना है या z के करना है? y. Why you saying y? स्पेसिफाई करो क्यों y के साथ करना है हमको सर वो लिमिट्स में क्योंकि y यहाँ पे नहीं है इसमें y एब्सेंट है सो जो टर्म एब्सेंट होता है उसके रिस्पेक्ट टू आपको इंटीग्रेशन करना है सो पहले हम लोग करेंगे ये वाला इंटीग्रेशन उसके बाद का बाद में देखेंगे क्या क्या बचेगा dx एंड dz सो ये दो इंटीग्रेशन बाद में देखेंगे पहले मिडल टर्म इंटीग्रेट करो क्या होगा -1 to 1 ये एज इट इज लिखते हैं 0 to 2 अब मुझे बताओ ये मिडल टर्म का इंटीग्रेशन क्या होगा फर्स्ट टर्म x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा x इज अ कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ y x y क्यों क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है दैट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विद वेरिएबल सो अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1 है तो व्हाट इज इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx है तो इंटीग्रेशन क्या है x प्लस c अगर मेरा इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx है
तो मेरा क्या होगा 5 plus c. 5x plus c. सो अगर मेरा x इंटू डी वाई है तो क्या होना चाहिए XY. x इंटू xy वाई. plus c. ओके, सो दैट्स वाई इंटीग्रेशन x dy का क्या होगा xy प्लस c. सो ये सब चीजें हम हटा देते हैं जो रफ वर्क किया. डिलीट. अभी और बचा है, इसको भी डिलीट. सो लेट अस कम हियर फर्दर. प्लस व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y? Y square upon 2. y square by 2 plus again same z is constant with respect to y. So क्या होगा zy. z into y. So constant का इंटीग्रेशन क्या होता है constant times that value, constant times that variable. लिमिट्स क्या है x minus z to x plus z. और बचा टर्म्स कौन से बचे हैं dx dz. Understood the process? What is next step you will do? Substitute the limits. Substitution of limits कैसे होता है? How you will substitute these limits in terms of y? Since हमने इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट टू किया y के रिस्पेक्ट टू किया, so जहां पे भी आपका y है वहां पे आपको लिमिट्स डालने हैं. So wherever you find the y, you have to substitute the limits. Substitute the limits x into पहला का लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे x प्लस z वाला X लिमिट plus Z. सब्स्टिट्यूट करने x प्लस z प्लस सेकेंड में क्या करेंगे x plus z whole x square plus upon 2. z square upon 2 plus z into y. So z into x plus z. x plus X plus Y. z. So you have to be patient. Next minus x into अभी X सेकेंड वाला minus लिमिट Z. सब X minus Z. x minus z plus x X minus z z square bracket upon 2. square upon 2 plus z into X minus z. z. और बच्चा क्या अपने पास dx dx dz. dx dy dz. नहीं dx. हाँ बराबर. So again we will simplify this expression 1 minus 1 to 1 integration from 0 to 2. अभी अंदर का ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस एक्स प्लस जेड होल स्क्वायर क्या होगा x square plus Plus 2xz 2xz plus z square. प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2. देन यहाँ पे क्या होगा प्लस एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर राइट माइनस यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर x square माइनस minus xz. ओके प्लस x square एक्स स्क्वायर minus 2xz plus z square z स्क्वायर अपॉन 2 upon 2 प्लस xz माइनस minus z square. z square. Okay, so let us compute which of the limits are getting cancelled. So यहाँ पे x square है, यहाँ पे minus x square है, कैंसिल कर दो. यहाँ पे xz है, यहाँ पे minus xz है, तो यह कैंसिल नहीं होगा, ऐड होगा. So मैं यहाँ पे नेक्स्ट टर्म लिखता हूँ डायरेक्टली. So डायरेक्टली कैसे लिखता हूँ ये जरा ध्यान से देखो. -1 to 1 0 to z. सिंस यहाँ पे प्लस एक्स जेड है यहाँ पे माइनस एक्स जेड है तो दोनों ऐड होंगे माइनस माइनस विल बिकम प्लस सो इट इज बिकम 2xz राइट. सो ये दोनों को ऐड कर दिया 2xz कर दिया. अभी यहाँ पे एक्स स्क्वायर है यहाँ पे भी प्लस एक्स स्क्वायर है माइनस कैंसिल हो जाएगा. ये वाला टर्म जो है क्या होगा 2xz है यहाँ पे माइनस 2xz है तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस सो 4xz अपॉन 2 हो जाएगा
So I will write that term plus 4xz upon 2. On 2. अपोजिट साइड कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे z स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस z स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा ये पूरा, राइट? Yes. अभी xz कैंसिल हो जाएगा, xz कैंसिल हो जाएगा, और z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर में क्या होगा? एडिशन होगा, 2z square. राइट? प्लस 2z स्क्वायर, और क्या बचा अपने पास? ये जो पूरा है इसका ब्रैकेट का मल्टीपल क्या होगा? dx into dz. right, correct. So -1 to 1, 0 to 2. अभी इसको सिंप्लीफाई करो, 2xz plus 2xz 4xz, right? 4xz plus 2 times z square. Since limits in terms of z, so आप कैसे इंटीग्रेट करोगे? फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे, एंड देन विथ रिस्पेक्ट टू z सॉल्व करोगे. सो इट इज -1 to 1. अभी विथ रिस्पेक्ट टू x करना है. सो 4z इज अ कांस्टेंट. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x? X square upon 2. x स्क्वायर अपॉन 2. लिमिट्स फ्रॉम 0 to z लिख देता हूं डायरेक्टली. प्लस 2z स्क्वायर इज कांस्टेंट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x, मतलब x का साथ मल्टीप्लाई होगा, और x का लिमिट्स क्या होगा? 0 to z and lastly dz. So 4 and ये 2 will get cancel, यहाँ पे 2 बचेगा, 2z बचेगा. So it is 2z. यहाँ पे मेरा 2 और z एकदम अच्छे से दिख रहा है, समझना, मतलब आप बोल रहा हूँ उस पे ध्यान दो. अपर लिमिट z स्क्वायर माइनस 0, एंड देन यहाँ पे 2z स्क्वायर बाहर है, प्लस 2z स्क्वायर इंटू z माइनस 0, अपर लिमिट लोअर लिमिट, एंड यू हैव टू टेक. सो यहाँ पे भी 2z क्यूब बनेगा, यहाँ पे भी 2z क्यूब बनेगा. सो आपका इंटीग्रेशन बन जाएगा -1 to 1 2z क्यूब इंटू 2 प्लस 2z क्यूब इज 4z क्यूब, 4z क्यूब dz. अब इसका इंटीग्रेट करो, 4 इंटू z क्यूब का इंटीग्रेशन क्या आएगा? Z4. Z raised to 4 upon 4. Z raised to 4 upon 4. So this 4 will get cancelled. Integration from -1 to +1. Solve this. Upper limit is 1. -1 जब डालोगे तो -1 raised to 4 is again 1. So answer is 0. So limit का वैल्यू क्या है? 0 है. Okay. So you got the value as 0. Only thing in the double or triple integration, you have to be in patience. आपको वही रूल्स अप्लाई करने हैं और कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है. इसमें ज़्यादा चांसेस है कि आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए. ओके, सो लेट्स कम बैक टू आवर ओरिजिनल टॉपिक, ट्रिपल इंटीग्रल इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स. सो नेक्स्ट टॉपिक इज, जैसे हमने देखा कि हम लोग इन द 2 dimension we use the polar coordinates. Similarly, the polar coordinates in 3 dimension is known as cylindrical coordinates. तो cylindrical coordinates जो रहते हैं, why it is called a cylindrical coordinate? Because if you consider this particular r and theta relation, so let me draw it. यहाँ पे जो ड्रॉ कर रहा हूं मैं, अगर मैंने ये जो वैल्यू है थीटा, दिस वैल्यू थीटा, इफ आई चेंज इन द से थीटा जो है वो मैंने चेंज किया, तो मुझे क्या मिलेगा? आई विल गेट दिस सर्कल इन एक्स वाई प्लेन. आई रिमेम्बर मैंने जो बोला था कि r इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, r इज इक्वल टू 2, मतलब सर्कल ऑफ रेडियस 2 एंड सेंटर 1. अगर मैं ये जो सर्कल है उसको एक्सटेंड करता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है? अगर मैं ये जो सर्कल है वो एक्सटेंड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? आई विल गेट दिस काइंड ऑफ शेप दैट इज कॉल्ड एज सिलेंडर. सिलिंड्रिकल शेप मिलेगा.
वो सर्कल को आप ऊपर ले जाओ, थोड़ा ऊपर उठाओ, थोड़ा नीचे उठाओ, क्या मिल जाएगा? r इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रखा तो I will get this cylinder. Therefore, these coordinates are also known as cylindrical coordinates. Okay? क्योंकि यहाँ पे मैं जब r is equal to constant रखता हूँ, r is equal to a, in the 3 dimension, it is become a circular cylinder. Circular cylinder. एक्चुअली हम जो देखते हैं सिलेंडर वो नॉर्मली यही शेप का देखते हैं, राइट? ऐसा मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, बट आप समझ लो, मेरी भावनाओं को समझ लो कि आपका जो, अगर मैं सर्कल को ऊपर नीचे उठा रहा हूँ एक्स वाई प्लेन से, तो मुझे क्या मिलेगा? जो शेप मिलेगा वो क्या होगा? सिलिंड्रिकल शेप मिलेगा। ओके, एक्चुअली सिलेंडर को जब मैथमेटिशियंस डिफाइन करते हैं ना, तो मैथमेटिशियन बोलते हैं कि इट इज अ बेस कर्व। कुछ भी बेस कर्व रहेगा, उसको मैं अपर डायरेक्शन में और लोअर डायरेक्शन में उठाता हूं तो मुझे जो शेप मिलेगा वो सिलेंडर है। तो अगर मैंने ट्रायंगुलर को, इस ट्रायंगुलर को शेप में उठाया तो भी मैं सिलेंडर ही बोलूंगा उसको मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में। बट for more general purpose we will take the base is equal to circle. So base अगर सर्कल है तो आपका मस्त रेगुलर सिलेंडर बन जाएगा, और इसको जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसको बोलेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं कि आपका जो एक्स वाई प्लेन में कोऑर्डिनेट्स होता है, पोलर कोऑर्डिनेट्स, दैट इज कॉल्ड एज r, थीटा, इसमें अगर मैंने z एक्सिस का कोऑर्डिनेट ऐड कर दिया तो इसको बोलेंगे हम लोग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होता है 3 डायमेंशन में? एक्स वाई जेड। सो आपका जो पॉइंट्स रिप्रेजेंट होता है एक्स वाई जेड, इट इज विच कोऑर्डिनेट? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है? हम लोग एक्स, ये जो पॉइंट्स है उसमें एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में एक पॉइंट लूंगा, यहाँ पे अगर पी पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट लूंगा पी डैश, और उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करूंगा। सो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस पे उसका जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ये पी डैश है, इसका जो एक्स वाई प्लेन में लूंगा, ये वाला पॉइंट जो होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ये वाला पॉइंट होगा जो उसको बोलूंगा वाई कोऑर्डिनेट जो परपेंडिकुलर है, ओके, और z एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर। सो ये जो पॉइंट मिल रहा है वो मुझे क्या मिल रहा है, क्या दे रहा है? कोऑर्डिनेट्स 3 डायमेंशन में एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स दे रहा है। सिमिलरली अगर मैं इसको प्रोजेक्शन ले रहा हूँ पी डैश, उसका अगर मैं एक्स वाई प्लेन में कोऑर्डिनेट्स देखूंगा तो मुझे मिलेगा r, थीटा। r इज अ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, थीटा इज अ एंगल मेड विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सो जो हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स में पढ़ा है r, थीटा, वही हमको लेना है। सो पोलर कोऑर्डिनेट में सब्स्टिट्यूशन क्या किया था? x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा, r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सो व्हाट इज dx dy? dx dy हमको मिला था r dr d थीटा। वो भी कैसे किया था हमने, याद है? ऐसे पोलर रीजन बनाया था, ऐसा कोई तो डायग्राम बनाया था, यहाँ पे dr होगा और यहाँ पे क्या होगा, ये जो डिस्टेंस होगा वो r d थीटा होगा, इसलिए जो मल्टीप्लीकेशन कंपोनेंट, एरिया कंपोनेंट जो हमको मिला था वो क्या मिला था? r dr d थीटा। सिमिलरली यहाँ पे क्या मिलेगा? r dr d थीटा इंटू dz। So how to compute this polar coordinates? First we take the projection p dash, उसका polar coordinates देखेंगे r, थीटा, और उसमें z ऐड कर देंगे तो मुझे क्या मिलेगा? ये वाला पॉइंट मिलेगा in the cylindrical coordinates. So anything which we can substitute as a limits in the cylindrical coordinates we call it as so in general आपको शॉर्ट में अगर याद रखना है तो polar coordinates in the 3 dimension is called as cylindrical coordinates. Okay, so that is one system we can think of. Then there is another system which most generally we will use, that is called as triple integration in spherical coordinates. Okay, इधर थोड़ा आप ध्यान रखो कि थोड़ा ये चेंज होता है। r theta phi is the
So point Pxyz in the Cartesian system can be expressed in the spherical system as P r comma theta comma z. What is r? हमने जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट लिया था तब r यहाँ पे लिया था, सॉरी कंट्रोल z, यहाँ पे कंट्रोल z नहीं होता। हमने जब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट लिया था तो r यहाँ पे लिया था, ये जो प्रोजेक्शन है उसका r थीटा देखा था, p डैश का r थीटा देखा था, बट यहाँ पे हम लोग ओरिजिनल का r थीटा देख रहे हैं। सो स्पेरिकल में चेंज किया है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम लोग? r। ओके, नेक्स्ट, ये प्रोजेक्शन का p डैश का जो xy प्लेन में फॉर्म होता है, वो xy प्लेन में अगर मैं x एक्सिस के साथ एंगल मेजर करता हूं तो उसको क्या बोलेंगे? फाई। दिस एंगल इज फाई। सो लास्ट एंगल फाई इज व्हाट? प्रोजेक्शन का एंगल विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो यहाँ पे r थीटा के जगह पे हम लोग क्या कर रहे हैं? r इज डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। देन थीटा, थीटा जो है वो क्या है? एंगल मेड विद द पॉजिटिव z एक्सिस। ओके, सो theta is the angle made with the positive z axis and phi is the angle made with the projection with x axis. Okay, understood by this particular diagram. आप diagram से एक बार समझ लो. What is this r theta phi? r is a distance from origin. Then theta is a angle made with the पॉजिटिव z एक्सिस, एंगल मेड विद द पॉजिटिव z एक्सिस। तो आपका ये जो एंगल रहेगा वो एंगल किसके कहां से बीच होगा? सो आपका जो थीटा का रेंज होगा फ्रॉम 0 to 2 पाई। जनरली आपको लगता है ना 0 to 2 पाई, वो ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे थीटा का रेंज होता है 0 to पाई। z एक्सिस के साथ जो भी एंगल मिलता है उसको हम लोग 0 to पाई लेंगे। ओके, फाई का जो एंगल रहता है वो लेंगे 0 to 2 पाई। अभी आप मुझे पूछोगे कि सर यहाँ पे पाई ही क्यों ले रहे हैं? या दोनों पे भी ये, एक तो z एक्सिस पॉजिटिव z एक्सिस के साथ ले रहे हैं, एक पॉजिटिव x एक्सिस के साथ ले रहे हैं, बट जो x एक्सिस के साथ ले रहे हैं उसका 2 पाई तक लिमिट लेंगे, और जो z जो क्या बोलते हैं, जो मैं इसका ले रहा हूँ, जो z एक्सिस के साथ ले रहे हैं उसका पाई तक लेंगे, और जो x एक्सिस के साथ ले रहे हैं उसका 2 पाई तक लेंगे। ऐसा क्यों? सो आप एक इमेजिन करो कि आपके पास एक कॉइन है। इमेजिन दैट यू हैव वन कॉइन। ओके, ये कॉइन का अगर आप डायमेंशन देखोगे तो यहाँ पे r आएगा और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो थीटा आएगा। सो थीटा को अगर मैं 360 डिग्री में घुमाऊंगा तो मुझे कॉइन का क्या मिलेगा? I will get whole of this circle, पूरा सर्कल ये जो है ये पूरा सर्कल में मिलेगा अगर मैं थीटा को किस डायरेक्शन में घुमाऊंगा? 2 पाई तक घुमाऊंगा। अभी आप ये थीटा को वर्टिकली रोटेट करो, वर्टिकली रोटेट करो मतलब कॉइन को घुमाओ, तो कितना रोटेशन के बाद आपको पूरा स्क्वायर मिलेगा? क्या आपको 2 पाई तक घुमाना पड़ेगा या फिर आपका पाई डिग्री तक घुमाने के बाद चल जाएगा? तो ये जो कॉइन है, ये जो रोटेशन है, इसको मैं अगर 90 डिग्री में घुमा रहा हूँ, सो ये जो हॉरिजॉन्टल कॉइन है वो वर्टिकल कॉइन बन जाएगा। 90 डिग्री में वो क्या बन जाएगा? वर्टिकल कॉइन बन जाएगा। और एरिया कहाँ से कहाँ तक कवर करेगा? ये जो नीचे का एरिया है वो कवर करेगा, और ये ऊपर ये वाला एरिया ऊपर भी कवर करेगा। सब जब मैं 90 डिग्री में घुमा रहा हूँ तो ये और ये पार्ट मिल जाएगा मुझे। उसको फर्दर 90 डिग्री में घुमाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? वर्टिकल लाइन पे ये यहाँ पे है ना कॉइन, ये वाला कॉइन है, इसको और 90 डिग्री में घुमाऊंगा तो मुझे पूरा ये जो रीजन कवर हुआ था, ये जो रीजन कवर हुआ था उसके साथ ये भी रीजन कवर होगा, ये भी रीजन कवर होगा। सो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कितना घुमा रहा हूँ? मैं सिर्फ पाई डिग्री तक घुमा रहा हूँ, मैं पूरा 2 पाई तक नहीं घुमा रहा हूँ, क्योंकि एक साइड नीचे का भी एरिया कवर करता है, दूसरा साइड ऊपर का एरिया भी कवर करता है। सो एक जो एंगल है वो 2 पाई तक जाएगा और दूसरा जो एंगल है वो पाई तक जाएगा। Understood this process? Hello? Yes sir. तो इसीलिए हम लोग को जो है ना ये जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे xy प्लेन है, उसमें
2 पाई डिग्री तक घुमाते हैं और जो z एक्सिस के साथ एंगल है वो सिर्फ 90 डिग्री सॉरी 180 डिग्री में ही घुमाते हैं. ओके, सो दैट ये जो है वो कवर होता है पूरा. सो आपको अंडरस्टूड द प्रोसेस. आर का एंगल क्या होगा? 0 टू रेडियस. अगर मुझे पूरा स्क्वायर का कंप्लीट करना है तो मेरा कोऑर्डिनेट्स होगा, आर का लिमिट होगा 0 टू a, थीटा का लिमिट होगा 0 टू पाई एंड फाई का लिमिट होगा 0 टू 2 पाई. सो ऐसे लिमिट लेके मुझे पूरा कंप्लीट स्क्वायर मिलेगा. किसी का माइक ऑन है तो सिर्फ ऑफ करो, जब आप आंसर दे रहे हो तब भी अनम्यूट करना. ओके, नाउ ये कोऑर्डिनेट्स कैसे आते हैं? ओके, लेट अस सी हाउ दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कमिंग. ओके, सो मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करता हूँ. ये वाला पॉइंट मैं z एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ. ओके, सो ये वाला पॉइंट क्या है? अभी यहाँ पे ट्रायंगल में देखो, यहाँ पे मुझे ये पॉइंट क्या मिलेगा? ये मिलेगा r sin थीटा. दिस एंगल विल मेड बाय r sin थीटा. एंड ये जो पॉइंट है, ये जो z एक्सिस का डिस्टेंस है वो क्या मिलेगा? r cos थीटा. सो z वाला पॉइंट मिल गया मुझे. z वाला पॉइंट क्या मिलेगा? r cos थीटा, क्योंकि वो एडजेसेंट साइड है. और ये वाला साइड जो है वो कौन सा है? अपोजिट साइड है. सो साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. एंड cos थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. सो अपॉन दिस जब हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे तो ये क्या होगा? r cos थीटा. ये क्या होगा? r sin थीटा. और ये जो पैरेलल बन रहा है तो इसीलिए इसका वैल्यू भी क्या होगा? r sin थीटा. सिंस ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये जो ये बन रहा है वो क्या है? रेक्टेंगल बन रहा है. अगर मैं ऐसे ज्वाइन करूं तो यहाँ पे r cos थीटा होगा z एक्सिस पे, यहाँ पे r sin थीटा होगा. सिमिलरली xy प्लेन में यहाँ पे नीचे भी क्या होगा? r sin थीटा होगा. और ये वाला साइड क्या होगा? r cos थीटा होगा. ओके, तो ये चारों साइड है. बिकॉज ऑफ रेक्टेंगल वी कैन गेट दिस पर्टिकुलर साइड. सो व्हाट आई विल गेट? z इज इक्वल टू r cos थीटा. और नीचे वाला साइड ये जो r sin थीटा मैंने ड्रॉ किया था, r sin थीटा सेम यहाँ पे ड्रॉ होगा, r sin थीटा. सो जो पोलर कोऑर्डिनेट्स है वाला एंगल क्या होगा? sin थीटा. और अभी ये थीटा के, ये फाई के रिस्पेक्ट टू देखो, फाई के रिस्पेक्ट टू क्या होगा? सो ये हाइपोटेनियस है, यहाँ पे ये हाइपोटेनियस है और ये एडजेसेंट साइड है. सो एडजेसेंट साइड मतलब क्या होगा? दिस साइड इज इक्वल टू r sin थीटा विच इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इनटू एडजेसेंट साइड है, इसलिए क्या होगा? cos ऑफ फाई. दिस साइड इज cos ऑफ फाई. r sin थीटा cos ऑफ फाई. सो x का डायरेक्शन में क्या मिलेगा? r sin थीटा इंटू cos ऑफ फाई. सिमिलरली यहाँ पे क्या है? दिस साइड इज अपोजिट साइड, सो इट इज r sin थीटा. ये वाला जो डिस्टेंस है वो r sin थीटा इंटू साइन फाई. सिमिलरली ये रेक्टेंगल अगर कंप्लीट करेंगे तो ये वाला साइड और ये वाला साइड मैच होगा, इसलिए ये वाला साइड जो y एक्सिस पे है वो भी क्या होगा? r sin थीटा इंटू साइन फाई. ओके, सो आपको कोऑर्डिनेट्स क्या मिले? x इज इक्वल टू r sin थीटा cos फाई, y इज इक्वल टू r sin थीटा इंटू साइन फाई एंड z इज इक्वल टू r cos थीटा. सो व्हाट इज द स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. इफ यू कंप्लीट द स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, इसका वैल्यू कैसे मिलेगा आपको? x स्क्वायर क्या है? r sin थीटा. तो यहाँ पे r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर फाई प्लस व्हाट इज नेक्स्ट? r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू y का कोऑर्डिनेट क्या है? साइन फाई, साइन स्क्वायर फाई. एंड z का कोऑर्डिनेट क्या है? r cos थीटा. सो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. अभी इनको ऐड करो. सो पहले दो में क्या कॉमन है? r sin स्क्वायर थीटा. यहाँ पे भी r sin स्क्वायर थीटा. सो मैं उसको क्या लिखता हूँ? r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू. व्हाट डज लेफ्ट विथ? cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई.
सो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर का वैल्यू क्या आता है? 1. So cos square plus sin square is 1. So you will get r square sin square theta only plus r square cos square theta. अभी r square को कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा? sin square theta plus cos square theta which is equal to 1. So जो सेकेंड ब्रैकेट मिलेगा r square के बाद sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So आपको क्या मिलेगा इक्वेशन? r square is equal to x square plus y square plus z square. This is the equation of sphere with radius r. So जो आपको r square is equal to x square plus y square plus z square मिल रहा है वो क्या है? Equation of a sphere in 3 dimension. मतलब it is a type of ball with radius r centered at origin. So आपको ये जो इक्वेशन मिल रहा है किसका मिल रहा है? स्फीयर का मिल रहा है. इसलिए इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को क्या बोलेंगे? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. अभी ये इसका यूज कहाँ पे होता है? इसका बेस्ट यूज होता है, लेट अस सी वेयर दिस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज. सो आई विल जस्ट सी ज्योग्राफी. So let me clear on whatever on the screen. So you can see this longitude and latitude system. Yes, longitude and latitude system. Yes, sir. में पढ़ा है. तो ये जो नॉर्थ पोल होता है उसको 90 डिग्री प्लस मानते, साउथ पोल माइनस 90 डिग्री मानते. मतलब कितना डिग्री कवर होता है आपका? टोटल 180 डिग्री कवर होता है. 90 डिग्री पॉजिटिव डायरेक्शन, 90 डिग्री निगेटिव डायरेक्शन, टोटल 180 डिग्री कवर होता है. ये आपका z एक्सिस है. ओके. और आप जब ये हॉरिजॉन्टली देखते हैं लॉन्गिट्यूड तो पूरा 180 डिग्री कवर होता है. यहाँ पे 0 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 180 डिग्री. सिमिलरली इस डायरेक्शन में माइनस 90 डिग्री माइनस 180 डिग्री. मतलब पूरा कितना कवर हो रहा है? 2 पाई. सो लॉन्गिट्यूड का जो रेंज होता है वो क्या होता है? 0 to 360. लैटिट्यूड का जो रेंज होता है वो क्या होता है? 0 to पाई. सो द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट इज योर ज्योग्राफी में आप जो पढ़ रहे हो, जो आपने ज्योग्राफी पढ़ा है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड सिस्टम, वो आपका किस पे कौन से कोऑर्डिनेट पे डिपेंड होता है? दैट इज यू आर डिपेंडिंग ऑन योर spherical coordinate system. So spherical coordinate system is used in geography where you have longitude and latitude. So आपको कभी भी spherical coordinates का application देखना है तो आपको क्या करना है? You have to use this particular thing. Why it is so important? Because हम लोग को भले ही लगता है कि हम जो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं वो स्ट्रेट लाइन में है जब हम लोग कुछ भी बिल्डिंग का एरिया वगैरह मेजर करते हैं, बट अगर वो बड़ा एरिया है तो वी हैव टू यूज दैट कर्व वाला फॉर्मूला. सो अंडरस्टूड दिस इन द अर्थ. इफ यू आर यूजिंग अर्थ का रेडियस ही इतना बड़ा है कि आप सभी कैलकुलेशन जो है स्ट्रेट लाइन में कर रहे हो, बट एक्चुअल में इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट इज लाइक अ दिस फॉर्मूला. सो आपको जब बड़ा एरिया का एग्जैक्ट एरिया फाइंड करना पड़ता है, सो जब बड़ा बड़ा साइज हो जाता है एरिया का तो कैलकुलेट करना वैसे मुश्किल हो जाता है. सो फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ इंडिया, सो यू कैन नॉट यूज दैट पर्टिकुलर थिंग. सो यू हैव टू कंसिडर द स्फेरिकल नेचर ऑफ योर अर्थ into consideration when you calculate the area of India. जब आप किसी कंट्री का एरिया निकालते हो तो आपको एक्चुअल में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो यूज करना पड़ेगा. मतलब यहाँ पे जब एरिया आपका इंडिया का मैप ड्रॉ करोगे तो नॉर्थ टू साउथ कितना एरिया है वो ऐसा नहीं होगा एकदम स्ट्रेट लाइन, इट इज लाइक अ कर्व लाइन. और उसको आप स्फेरिकल में जोड़ोगे, यहाँ पे थीटा का कौन सा मेजरमेंट हो रहा है, फिर उसके बाद आपको लेंथ मिलेगा, उसके बाद आपको ब्रेड मिलेगा इंडिया का. सो व्हेन यू कंप्यूट द एरिया ऑफ अ लार्ज लाइक अ कंट्री और लाइक अ स्टेट, that time you have to consider that shape into the picture. But if you calculate the area of a building or area of a room, वो बहुत ही short है.
मतलब पूरे अर्थ की तुलना में वो बहुत ही शॉर्ट रीजन है, तो उसमें आप स्ट्रेट लाइन मान के आप एरिया कैलकुलेट करते हो तो वो चल जाता है, बट बड़े साइज पे यू कैन नॉट डू दैट. ओके, so this is about the today's lecture. Next time we will see ये जो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट है वो कैसे यूज करना है, मतलब पूरा स्पेयर दिया होगा तो क्या लिमिट्स होगा, आधा सर्कल दिया होगा तो क्या लिमिट्स होगा, अगर सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्कल दिया तो क्या लिमिट्स होगा, ये सब हम लोग देखेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, and then we will complete this particular triple integration chapter in the next lecture. Okay, so this is very interesting to know, मतलब ये पूरा जो है इंटीग्रेशन का जो चैप्टर है डबल इंटीग्रेशन, ये पूरा आपकी इमेजिनेशन पे है. यस, ओके, वन मोर थिंग आई हैव टू कंटिन्यू बिफोर यू गो. किसका आवाज आ रहा है? रेवंत, रेवंत आपको कुछ कहना है?